Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a faculty representing Shantipani Higher Secondary School, Rajoda student. Now I take chapter number 3, class 11 physics, motion in straight line, another section numerical section. बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि न्यूमेरिकल इज अ डिफिकल्ट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द फिजिक्स, दैट इज नॉट। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स आपको काफी इजी तरीके से बन जाएंगे। नाउ वी टेक अ न्यूमेरिकल सेक्शन रिलेटेड टू definite integrals. What is the mean of the integrals? That means the integration. Integration basically divide into two category. ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरी होती है, बट मैं मेजर दो ले सकता हूँ, एक definite and second one is the indefinite. Now we take a part indefinite, then after we will take definite integration. In the case of the definite integration, simply we approach is same, but we taking the limit of integration, that means the upper limit and lower limit. Now we take the some examples जो आपकी NCERT book में है। integration x, we have to find the integration of following function, that means the integration of x, integration of 1, integration x to the power 3 by 2 and 1 by root x. Now first question, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। आई लेट आई विल बी इक्वल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। व्हाट इज द मीन ऑफ द आई? लेट आई इज अ एनी इंटीग्रल फंक्शन x dx. Here the power of x will be equal of 1, such that we know that about the property x to the power n dx will be equal of n plus 1 whole by n plus 1, where n will be equal of 1, such that I equal to x to the power 1 plus 1 whole by 1 plus 1. I will be equal of x to the power 1 plus 1, that means a 2 by 2. I will be equal of 1 by 2 x square. I hope you getting the proper solution related to first numerical. Now student, we taking the second question. क्वेश्चन नंबर सेकंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वी नो दैट इंटीग्रेशन dx विल बी इक्वल ऑफ x। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx विल बी इक्वल ऑफ x लिख देंगे, आंसर करेक्ट, बट अप्रोच इज नॉट करेक्ट। हियर वी नो दैट x टू दी पावर 0 विल बी इक्वल ऑफ 1। दुनिया में किसी की भी पावर 0 कितनी होती है, 1, तो आप y टू दी पावर भी 0 लिख सकते थे, बट हियर इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ dx, सो वी चूज। आपको इतनी बात समझ आ गई होंगी। नाउ x टू दी पावर n dx, सेम फॉर्मूला एज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विल बी इक्वल ऑफ x टू दी पावर n प्लस 1 होल बाय n प्लस 1, देन I will be equal of x to the power n will be equal of 0. So x to the power 0 plus 1 whole divided by 0 plus 1. So I equal to x to the power 1 by 1. So here x to the power 1 by 1 will be equal of x. So solution of integration dx will be equal of x. आप डायरेक्ट मत लिखिएगा इंटीग्रेशन dx विल बी इक्वल ऑफ x, डायरेक्ट नहीं है। या तो आप इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए एक जनरल अप्रोच यूज कीजिए, अदरवाइज यू सॉल्व बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन? आई विल बी इक्वल ऑफ x टू द पावर 3 by 2 dx. We know that about the formula related to question, x to the power n dx will be equal of n plus 1 whole by n plus 1, where n will be equal of 3 by 2, such that I will be equal of x to the power 3 by 2 plus 1, 3 by 2 plus 1. I will be equal of 2 1 ja 2 plus 3, that means 5 by 2. One more time, same. So 5 by 2. 5 by 2 is a denominator, so we take 2 by 5 x to the power 5 by 2. I hope you getting the proper solution related to third question. First, second, third. Now we moving with the fourth question. I will be equal of 1 by root x dx. Sir, here आप ये सोच रहे होंगे वी टेक द फॉर्मूला रिलेटेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बट इन द केस ऑफ द इंटीग्रेशन वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला रिलेटेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो वी टेक in another form,
1x to the power 1 by 2. What is the mean of the 1 by 2? Positive 1 by 2 moving in the form negative 1 by 2. Now we used x to the power n dx will be equal of n plus 1 whole by n plus 1, where n will be equal of minus 1 by 2. Here n will be equal of 0, n will be equal of 0, n will be equal of minus 1 by 2, सॉरी n will be equal of 1 0 and माइनस 1 by 2. मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल रहा है n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है. आप कभी मत सोचिएगा कि n हमेशा पॉजिटिव ही होगा. सो I will be equal of x to the power minus 1 plus 1 whole by minus 1 plus 1. I will be equal of these into these 2 minus 1 will be equal of 1 by 2 and 1 by 2. 1 by 2 convert into the form 2 and x to the power 1 by 2 will be equal of root x. I hope student you getting the proper solution related to question number first, second, third and fourth. Student, now we taking the another questions. These and these. Simple approach use करेंगे. We have to find the integration of the following function with respect to x. That means a solution I will be equal of integration sin x minus 2 by x plus e to the power x dx. I will be equal of sin x dx minus 2 by x dx e to the power x dx. आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इस मेथड को बोला जाता है सेपरेट मेथड. जब हमारे बीच में फंक्शंस के बीच में वी हैव ओनली द पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नेचर वी कैन सेपरेट इजीली, बट इन द केस ऑफ द इनटू एंड डिवाइड वी हैव टू make another approach. Student, now one more time we written sin x dx integration dx, that means only the function in the form of x, so 2 as a constant outside of integration e to the power x dx. Now I will be equal integration sin x dx will be equal of minus cos x. You have to learn all formulas related to integration. Integration sin x will be equal of minus cos x. Differentiation of sin x will be equal of positive cos x. Minus 2 1 by x will be equal of log x and e to the power x will be equal of e to the power x. e to the power x के साथ बहुत अच्छी कहानी है. द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ e to the power x will be equal of e to the power x, that means same. आपको याद हो जाएगा. That is the solution for the first question. Now we take the another question. I will be equal of integration tan square x dx. Student, कभी भी इंटीग्रेशन के पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए. इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है. वी नो दैट अबाउट द इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स. फिर से सुनिए मेरी बात. वी नो अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स. सो हम कहीं ना कहीं 1 plus tan square theta will be equal of sec square theta, such that tan square theta will be equal of sec square theta minus 1. I will be equal integration sec square x minus 1 with respect to x. Now time to separate. Integration sec square x dx minus integration 1 into dx will be equal of dx, such that you know that about the integration of sec square x will be equal of, मुझे आपको बताना चाहिए, d by dx of tan theta will be equal of sec theta. That means डिफरेंशिएशन इधर से जाएगा तो इंटीग्रेशन sec square theta will be equal of tan theta and integration dx will be equal of x. I hope student you getting the proper solution related to question number first and question number second. Some student have that some doubts related to constant. आप बोलेंगे सर हमने एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशन में प्लस सी भी देखा है. सर प्लस सी दैट मीन्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट.
अगर जो आप चाहे तो आप इसमें प्लस सी भी लगा सकते हैं, बट प्लस सी का अगर जो मैं फंडामेंटल थ्योरी का अकॉर्डिंग रूल देखूं, देन वी टेकिंग द इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, जब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करते हैं तभी हमको कांस्टेंट लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। नाउ what about the integration 1 upon 1 minus sin x in the case of the numerator and denominator we don't have any formula related to integration, मतलब कहीं ना कहीं मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ अप्रोच करनी पड़ेगी। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैंने अगर जो देखूं तो ये मुझे क्लास 9 का पार्शियल जैसा दिख रहा है, बट क्लास 9 में हम नंबर के फॉर्म में लेते थे √3 प्लस √2, √2 प्लस √3, तो मैं यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ इसका। ठीक है, रेशनलाइजेशन दैट मीन्स ROD, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर सच दैट 1 प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स with respect to dx. I will be equivalent numerator into numerator and denominator into denominator. A plus b, a minus b will be equal of a square minus b square. ठीक है, 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल ऑफ 1. स्टूडेंट I will be equal of 1 plus sin x whole divided by 1 minus sin square theta will be equal of कोस स्क्वायर थीटा। आप मुझे बोलेंगे सर अभी हाल आपने बोला था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ये तो वापस वैसा बन गया। बट व्हेन अगर जो मैं इसको सेपरेट करूं 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स प्लस देखिए मैंने इंटीग्रेशन सेपरेट नहीं करा, सिर्फ फंक्शन सेपरेट करा, साइन बाय कोस स्क्वायर एक्स देन डी एक्स। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई will be equal of 1 by cos theta will be equal of sec theta. So will be equal of sec square and मैं सेपरेट भी कर देता हूँ sec square theta integration sin theta by cos theta will be equal of tan theta, sin theta by cos theta will be equal of tan theta और 1 by cos will be equal of sec integration. We know about the formulas or identities. Integration sec square x will be equal of 10x and 10x sec x will be equal of sec x. I hope student you getting the proper solution related to question number first, question number second and question number third of next step. Now we moving with the another property. Student, now we take another question. I will be equal of integration x into e to the power x. I will be equal of integration log x. I will be equal of integration x into cos x. आप ये सोचेंगे सर व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द क्वेश्चन जो हमने पिछले क्वेश्चन लिए थे और इसमें लिए थे। सर याद रखिएगा क्वेश्चन में डिफरेंट होता है बट डिफिकल्ट नहीं होता है। क्वेश्चन कंसिस्ट द डिफरेंट अप्रोच बट नॉट अ डिफिकल्ट अप्रोच। ईच एंड एवरी मेथड इज वेरी सिंपल। आपको समझना चाहिए यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन देखेगा फर्स्ट और सेकंड दैट मीन्स टू फंक्शंस आर देयर इन द फॉर्म ऑफ एक्स। वी हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप बोलेंगे सर आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड ले सकते हैं, ऐसा मैंने ही बोला था, बट इन द केस ऑफ द डिफरेंशिएशन अगर जो यही क्वेश्चन होता वी हैव टू फाइंड द डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, तो मैं किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकेंड कंसीडर कर सकता था। बट इन द केस ऑफ द इंटीग्रेशन वी हैव सम मेथड्स रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन, जिसको मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे मेथड है, दैट मीन्स इसको इलाइट मेथड बोला जाता है। स्टूडेंट आपको सिंपल भाषा में बोलता हूँ, फर्स्ट हमेशा उसको कंसीडर करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन करने पर धीरे धीरे आंसर 0 आ जाए। व्हाट इज द मीन ऑफ धीरे धीरे? फॉर एग्जांपल हियर वी टेक अ क्वेश्चन इन द फॉर्म x to the power 3 and e to the power x। अगर आप e to the power x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, देखिए यहाँ पर मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन सेकेंड एंड अगेन होल इंटीग्रेशन विथ नेगेटिव साइन। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप ध्यान दीजिए
डी बाई डी एक्स फर्स्ट और इंटीग्रेशन सेकेंड, मतलब रूल नंबर फर्स्ट ये बनता है हमेशा फर्स्ट उसको कंसीडर करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, और सेकेंड उसको कंसीडर करना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आता है। तो आप बोलेंगे सर वी नो दैट the differentiation of x and integration of x, we know that differentiation of e to the power x and integration e to the power x, मतलब हमको डिफरेंशिएशन भी आता है और इंटीग्रेशन भी आता है। तो सर डिफरेंशिएशन फर्स्ट उसको कंसीडर करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन धीरे धीरे जीरो हो जाए। सोचिए, मान लीजिए आप e टू द पावर x को फर्स्ट कंसीडर करते तो द डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x, फिर से e टू द पावर x, फिर से e टू द पावर x, फिर से e टू द पावर x, मतलब ये क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होता। अंडरलाइन कभी भी खत्म नहीं होता, सालों तक आप क्लास 11th में ही रह जाते। सो वी हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट पार्ट ऐसा लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन धीरे धीरे खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल ये एक्स क्यूब है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर 2 के फॉर्म में आएगा, फिर 2 का वापस से करेंगे तो पावर 1 के फॉर्म में आएगा। मतलब आप समझिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विल बी इक्वल ऑफ 3x स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का होगा तो 2x, फिर x का होगा तो 1 और 1 का होगा तो 0। मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन 3 स्टेप्स में खत्म हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसलिए ये रूल है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक रूल बताया, फर्स्ट जिसका डिफरेंशिएशन धीरे धीरे 0 हो जाए उसको फर्स्ट, और इंटीग्रेशन फर्स्ट उसको कंसीडर करा जाता है जिसका डिफरेंशिएशन धीरे धीरे 0 हो जाए, बट सेकेंड का इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो सर मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिया x और सेकेंड लिया e टू द पावर x, वन मोर टाइम x इसलिए लिया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन धीरे धीरे कितना हो जाएगा 0, बट सेकेंड का इंटीग्रेशन आना चाहिए। हमको आता है इंटीग्रेशन e टू द पावर x, दैट मीन्स e टू द पावर x। नाउ स्टूडेंट, according to the formula of integration, first integration of second d by dx of first integration second, then after whole integration with negative sign, ठीक है। I will be equal of x, e to the power x will be equal of e to the power x। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये होल इंटीग्रेशन को मैं ऐसे रख रहा हूं, अंदर सोल्व करा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल ऑफ 1 एंड e टू द पावर x विल बी इक्वल ऑफ e टू द पावर x। नाउ I विल बी इक्वल ऑफ e टू द पावर x dx, e टू द पावर x विल बी इक्वल ऑफ e टू द पावर x। आपको समझ आया स्टूडेंट? Here the integration of e to the power x will be equal of e to the power x। इस क्वेश्चन से हमने सिर्फ दो फंडे सीखे हैं। फर्स्ट उसको कंसीडर करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन धीरे धीरे 0 हो जाए, बट सेकेंड का इंटीग्रेशन आना चाहिए। स्टूडेंट, नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन, आई विल बी इक्वल ऑफ इंटीग्रेशन log x। आप बोलेंगे सर इसमें तो दो फंक्शन ही नहीं है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1। By the simple concept of mathematics, we can write log x will be equivalent of 1 into log x। फर्स्ट उसको माना जाता है जिसका डिफरेंशिएशन धीरे धीरे हो जाए, किंतु सेकंड का इंटीग्रेशन आना चाहिए, और हमें इंटीग्रेशन log x नहीं आता, वो तो क्वेश्चन ही है। देखिए यहाँ, इसलिए हमको फंक्शन और सेकंड आ रहा समझ में सर स्टूडेंट? यहाँ पर हमने फर्स्ट इसको लिया था और सेकेंड इसको लिया था, बिकॉज वी नो द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट बट वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। और यहाँ पर अगर जो मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मानूंगा तो log x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, तो इसलिए मुझे मजबूरी में फर्स्ट और ये सेकेंड। नाउ स्टूडेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फर्स्ट दैट मीन्स log x इंटीग्रेशन सेकेंड। नाउ d by dx of first and integration second, then after whole integration with minus sign, I will be equal of log x, integration dx will be equal of x। You know that integration dx will be equal of x, d by dx will be equal of 1 by x, integration dx will be equal of x
we take the whole integration with minus sign. I hope you getting first integration second, d by dx first, integration second, and whole integration. Now finally written in the form x log x. X will be cancelled by x, then integration dx will be equivalent of x. I hope student you getting the proper solution. Solution मत देके you know about the rules related to integration. अब आप यहाँ पर सोचिए cos x, मान लीजिए cos x को आपने फर्स्ट माना, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन, साइन का cos, cos का साइन, साइन का cos, cos का साइन, और ऐसे ही आपका जीवन चलता जाएगा इन बिटवीन cos और साइन इफ यू सिलेक्ट फर्स्ट एज अ cos. तो मुझे मजबूरी में फर्स्ट किसको लेना पड़ा, x को, और सेकेंड किसको लेना पड़ा हमको, cos को. देन बाय यूज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड d by dx of first, integration of second, again whole integration with negative sign. Now I will be equal of x. Integration cos x, differentiation of cos x will be equal of minus sin x, and integration of cos x will be equal of positive sin x. D by dx of x will be equal of 1, and this is written in the form of sin x. Now I will be equal of x sin x, integration sin x dx, and integration sin x dx will be equal of, ठीक है, आपको सब कुछ याद होना चाहिए, cos x, so minus minus will be equal of minus minus will be equal of plus cos x. I hope student you getting the two methods related to integration. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajodha. Student, please like, then subscribe, and also study from our channel.